بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان محمد جاوید اقبال۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز اندلس۔ آج ہم اہم ایشو پہ بات کریں گے۔ پاکستان کا بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود اور واگا بارڈر بند کرنے کا اعلان۔ بھارت کے ساتھ شملہ معاہدہ بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج کی سفارت سے۔ تو پاکستان کا بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود اور واگا بارڈر بند۔ بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کی تعداد 30 افراد تک محدود کرنے اور دفاعی، فضائی و بحری مشینری کو ناپسندیدہ قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اہم قومی سلامتی کونسل کے اجلاس کا باضابطہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں تینوں سروسز چیفز، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے علاوہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عثمان خان، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے بھی شرکت کی۔ جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق واگا بارڈر کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ بھارت کے ساتھ تمام تجارتی و روابطیں اور بھارتی ایئر لائنز کے لیے پاکستانی فضائی حدود بند کر دی گئی ہے۔ پاکستان بھارت کی طرف سے سند طاس معاہدے کو معطل کرنے کے اعلان کو سختی سے مسترد کرتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ پانی کی روانی میں کسی بھی رکاوٹ کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا، جس کا ہر سطح پر مکمل جواب دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سارک ویزا اسکیم کے تحت جاری بھارتی شہریوں کو ویزے سکھ یاتریوں کے علاوہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کی تعداد 30 افراد تک محدود کرنے اور دفاعی، فضائی و بحری مشیروں کو ناپسندیدہ قرار دے کر ملک چھوڑنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے واضح کہا کہ پہلگام واقعے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا بھارت کی گھٹیا سوچ کی عکاسی ہے۔ بھارت کا کشمیر پر قبضہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اعلامیہ میں کلبھوشن جادیو کو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا زندہ ثبوت قرار دیا گیا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے بھارت کی اشتعال انگیزوں کو دو قومی نظریے کی سچائی سے تعبیر کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پاکستان ہر حال میں اپنی قومی سلامتی کا دفاع کرے گا۔ پاکستان نے سند طاس معاہدے کے اعلان کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اگر پاکستانی ملکیت کے پانی کے بہاؤ روکا گیا تو اسے جنگی اقدام سمجھا جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس نے سند طاس معاہدے معطل کرنے کا بھارتی یک طرفہ اعلان مسترد کر دیا ہے۔ پانی پاکستان کا اہم قومی مفاد ہے اور 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے۔ پاکستان اپنی لائف لائن کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ پاکستان کی ملکیت کے پانی کا بہاؤ روکا گیا تو پانی کا بہاؤ موڑا گیا تو اس جنگ کا اقدام سمجھا جائے گا۔ اعلامیہ میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت کے غیر ذمہ دار رویے کے پیش نظر پاکستان نے تمام دو طرفہ معاہدے بشمول شملہ معاہدے کو بھی معطل رکھنے کا حق محفوظ رکھا ہے۔ جب تک بھارت دہشت گردی، سرحد پار قتل اور اقوام متحدہ کے قراردادوں کی خلاف ورزیوں سے باز نہیں آتا، واگا بارڈر کو فوری طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ 30 اپریل 2025 تک صرف وہ افراد جن کے ویزے درست ہیں واپسی کے لیے اس راستے کو استعمال کر سکیں گے۔ سارک ویزا استثناء اسکیم کے تحت بھارتی شہریوں کو جاری کیے گئے تمام ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ صرف سکھ یاتری اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ دیگر بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صفدر حسین سندھو صاحب، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ، معروف تجزیہ نگار، اندلس نیوز، جن سے آج ہم اہم سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اپنے شو میں صفدر حسین سندھو صاحب کو ویلکم کہتے ہیں۔ سندھو صاحب، اب یہ بتائیں، پہلگام میں سیاحتی افراد، خواتین و فائرنگ کر کے 24 کے قریب قتل کر دیے گئے، مگر بھارتی سیکورٹی نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام لگا کر پاکستانیوں کو فوری طور پر بھارت چھوڑنے کا حکم دیا، مگر بھارتی دجالی میڈیا نے جنگ چاہتا ہے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
अस्सलाम वालेकुम जवेद साहब, आज का जो ये आपका सवाल है इंतहाई संजीदा, परेशान कौन और इंतहाई मदबरामना जो आपका चाहता है। मैं इसलिए ये बात की है कि बेशक हमारे अपने हुक्मरानों से कितने भी इख्तलाफ हों, अपने हुक्मरानों के हम उनकी जो ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने के लिए अपने आम तौर पर तज़किया करते रहते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान हमारा घर है। अगर इस घर पर कोई हमला आवर करेगा, कोई भी इस पर हमला करेगा तो हम डट कर उसका मुकाबला करेंगे और डट कर अवाम फ़ौज के साथ खड़ी होगी, डट कर तमाम इंडिया की इंडिया वालों ने ये क्यों किया, पहले ये भी मैं थोड़ा सा कमेंट्स करना चाहता हूँ कि वहाँ के हुक्मरान अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अब पाकिस्तान से जंग करना चाहते हैं और पाकिस्तान को कमज़ोर समझते हैं और इसलिए उस पर उसने पहले जो कश्मीरियों का हक जो था 370A के तहत उसको ख़त्म किया। अब वो एक नैब सदर जो अमेरिका का आया हुआ था उसके आने पर ये इन्होंने पहले भी ऐसे पुलवामा में करते रहे हैं, पहले गाड़ी में वाघा बॉर्डर पे किया, जो बाद में साबित हो गया। इन्हीं के फौजी अफसरों ने, तजिया नगारों ने बताया कि ये मोदी ने महज मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए, अपना इलेक्शन जीतने के लिए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत करके बाद में हमदर्दी पैदा करके वोट लेने के लिए ये ड्रामा रचाया था। आज भी ये भी ड्रामा रचाया गया है। ये पाकिस्तान पर उसको रात को 3 बजे हमला करते हैं दहशतगर्द और बेगुनाह शहरियों को, सियाहों को वो कत्ल करते हैं, तो वो 3:05 पर पूरे इंडिया के तमाम स्टेशन ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है। इसलिए ये एक सोची समझी स्कीम थी और इस सोची समझी स्कीम का जवाब हमारी आज हुकूमत ने उनको दे दिया है। हम भी ये इंडिया को बावर कराना चाहते हैं कि ये उनकी गलत फहमी है। चाहे हम तादाद में आपसे कम हैं, लेकिन हमने कोई खिलौने लेने के लिए, कोई रेवड़ियाँ लेने के लिए एटम बम बना के नहीं रखा। अगर हमें आप तंग करेंगे, ज़िंदा नहीं रहने देंगे। हम अमन परस्त हैं, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर आपने मुसल्लत जंग की तो हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और आपको पहले भी 2019 में भी आपने देख लिया, इससे पहले भी आपने देख लिया, हम कमज़ोर नहीं हैं। हम इस अल्लाह के नाम पर ज़िंदा रहने वाली कौम है और क़ायद आज़म ने इसीलिए अलहदा किया था कि हम एक ऐसी ज़िंदा कौम है कि हम जो अपने मुल्क पर अपनी जान कुर्बान करके हमेशा के लिए जन्नत में जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। ये शहादत का रुतबा सिर्फ मुसलमानों के पास है और किसी के पास नहीं है। इसलिए हम ये आपको, मैं इंडिया के हुक्मरानों को, मोदी साहब को ये बेमांगे दोहल कहता हूँ कि ये आप अपने मुल्क के अंदर बेरोज़गारी को दूर करें, अपने मुल्क के अंदर लोगों की गुर्बत को दूर करें। ये ड्रामे रचाकर वोट लेने की जो आप कोशिश करते हैं और पाकिस्तान को दबाने के लिए, इंटरनेशनली तौर पर अपना रोब जमाने के लिए ये करते हैं, जो भी हरकत करते हैं ये बिल्कुल गलत है। आज के दौर में ये मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है। कोई चीज़ आपकी छुपी नहीं रही जा सकती। बेशुमार 2 लोग जो कत्ल किए हैं इन्होंने, उनमें मुसलमान आदिल हुसैन शाह और दीगर लोग भी आ गए हैं। कुछ बॉडीज़ इन्होंने डेड बॉडीज़ ऐसी दिखाई हैं, ज़ाहिर की हैं, जो लोग ज़िंदा हैं। अब उनकी कोई पुरानी तस्वीर लगाकर वो एक खातून जो है वो कह रही थी कि मैं तो ज़िंदा हूँ अपने खावंद के साथ और मुझे डेड दिखाया जा रहा है, जिससे पूरे हिंदुस्तान में मेरे लिए परेशानी बनी हुई है। इसलिए ये हरकत ख़ानदान के लिए भी परेशानी बनी हुई थी, उनके ख़ानदान के लिए बहुत परेशानी बनी हुई। इसलिए पाकिस्तान के अवाम इंडिया के इस जुल्म के ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं। हमारी अपोजिशन भी इकट्ठी है। मैं भी एक सोशलिस्ट,
जदोजहद करता हूँ अपने मुल्क के अंदर मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन हम अपने वतन के लिए, हमारा वतन रहेगा तो हम रहेंगे, इसलिए हम बबांगे दोहल जो है अपनी फ़ौज के साथ हैं, और आपकी किसी किस्म की ज़्यादती जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखे ना जी, वज़ीर आज़म जो उधर के महान मंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उसने इस वाक़े की तहकीकात करवाई दी कि हमला आवर कहाँ से आया। उनकी फोर्सेस की नाकामी तो ये है, इस हाल में है कि हमला आवर फरार हो गए हैं, इन इतने लोगों को कत्ल करके, बेशक वो बॉर्डर के दूसरे पार हो या इस पार हो, तो इनकी फोर्सेस नहीं पहुंची, और ना पहुंचना ये कितनी बड़ी नाकामी है। तो दूसरा, इसकी तहकीकात ही नहीं अभी तक हो सकी। तहकीकात होने के बाद अगर इल्ज़ाम तराशी करते या पाकिस्तान पे इसको इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते तो फिर तो मानने में बात आ रही थी, लेकिन इसकी तहकीकात हुई नहीं, तो इन्होंने एक तरफा इल्ज़ाम लगा दिया, और सऊदी अरब के दौरे पे थे, वहाँ पे दौरा छोड़ के आ गए हैं नरेंद्र मोदी। आप इसकी फोर्सेस को और नरेंद्र मोदी की सोच को आप किस तरह देखते हैं जी? जी साहब, मैं इसको ये समझता हूँ कि ये मोदी की जो, और हमारे मोदी की जो एजेंसियाँ हैं, वो जो उनकी सीक्रेट एजेंसियाँ हैं, ये उनकी बाकायदा प्लानिंग थी। ये मोदी के सऊदी अरब जाने से कब तैयारशुदा सारा प्रोग्राम था। ये जो जैसे पहले ये ड्रामे करते रहे हैं, ये वाघा बॉर्डर पर गाड़ी पर किया, पहले पुलामा किया, और इस तरह ये दहशतगर्द बनाकर मुसलमानों को कत्ल करते हैं, ये बाकायदा एक ड्रामा था। यानी यक वक्त 5 मिनट के बाद 500 लोगों की ट्वीट एक ही आई है कि ये पाकिस्तान ने कर दिया है। 5 मिनट में दुनिया ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अभी इतनी भी तरक्की नहीं कि 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा ये किस मुल्क ने किया है। हमारे मुल्क पर जब आपने ये जाफर एक्सप्रेस पे वाक़या हुआ तो कोयटा के अंदर, तो पूरी तहकीक के बाद, कई दिनों की तहकीक के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा था कि इसमें BLA के जो हमायत है वो कर रहे हैं इंडिया वाले। जैसे कि आपका जो हमने गिरफ़्तार किया हुआ था यादेव, वो अभी तक गिरफ़्तार है। इसी तरह आपने पहले भी ड्रामा करने की कोशिश की थी कि हम 2-4 बम गिराएंगे और कहेंगे कि हमने इतने बम गिरा दिए हैं। तो आपका वो जहाज़ भी पकड़ा गया था और पायलट भी पकड़ा गया था, अभिनंदन, वो जो जिसको हमने खैर सगाल जहाज़ का गर्क हो गया था, और उसको ज़िंदा पकड़ कर भी हमने गैर सगाली के जज्बे के तहत उसको वापस कर दिया था। आज भी हम हुक्मरानों हिंदुस्तान को कहते हैं, हुक्मरानों को, कि अकल करो, हम हमसायों का कोई हक होता है, अपने मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए सोचो। ये प्लानगे ऐसी CID एजेंसियों के ज़रिए ये एक दूसरे पर ड्रामे करना बंद करो। हम चाहते ही नहीं हैं, हम अमन के ख़्वाह हैं, लेकिन हम पर अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर आपका हशर नशर कर दिया जाएगा। देखिए जी, पूरी कौम अफवाज़े पाकिस्तान सिपा सलार हाफिज आसिम मुनीर के साथ है, शाना बशाना उसके साथ खड़े हैं। अगर जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो ना चिड़िया चीखेगी, ना बांस रहेगा, ना बांसुरी, ना आपके मंदिरों में टल बजेंगे। ये बात याद रख लेना कि आप इतना आसान ना समझे, ना हम इतने आसान हैं। तो अगर हमारे पानी को रोकने की कोशिश की गई तो पूरी कौम ये सहलियत रखती है कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, पाकिस्तान का भारतीय हथियारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद और वाघा बॉर्डर बंद करने का ऐलान, भारत के साथ शिमला मुआहदा भी मनसूख कर दिया गया। आप इसको किस तरह देखते हैं जी? देखिए जी, तमाम दुनिया आज एक ग्लोबल, उन्होंने मुआहदा सिंतास ख़त्म किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का पानी रोक दो, तो इन्होंने शिमला मुआहदा ख़त्म कर दिया, उसके साथ फ़ज़ाई हदूद ख़त्म कर दी गई है। और जितने लोग इधर आए हुए उनको कहा कि 48 घंटे में छोड़ के हमारा पाकिस्तान चले जाएं। आपने सुना होगा, स्टार्ट में मैं बता रहा था। तो आप इसको किस तरह देखते हैं जी?
बस ये इस तरह मैं देखता हूँ कि जैसे को तैसा है। हम भी रोटी खाते हैं, मुसलमान हैं, हम पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, ख़ुद मुख्तार हैं, हमने आज़ादी हासिल की है। ये अगर हम पर हमला करेंगे तो क्या हमने चूड़ियाँ पहन रखी हैं? हम इसको भरपूर जवाब देंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये बजाय दे कि अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तुम लड़ाई की तरफ जाओ और इंसानियत का नुकसान करो, इंसान को तुम पीछे ले जाओ इंसानियत को, तो अकल करो। और ये देखो जैसे उन्होंने ऐलान किया वैसे हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है कि उनको जवाब अगर ना देते तो उन्होंने ये कहना था कि ये हम चौधरी हैं, ये डर गए हैं, ये माड़े हैं। हम माड़े शाड़े कोई नहीं आपसे, ये आपने लगा दे। एक हमारा जो नया सन भट्टी ने गाना है कि हमारे सिर्फ 45 काफ़ी हैं, तो इसलिए ये जहन में नहीं आनी चाहिए। मैं अलनिया कहता हूँ कि अगर उन्होंने हम पर जंग मसलत की तो हिंदुस्तान का नामो निशान मिट जाएगा दुनिया से। आज भी कहता हूँ कि आज भी अकल करें, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप हमारी इस बात को हमारी कमज़ोरी समझ रहे हैं। हम अमन के दाई हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया के तमाम इंसान अमन के साथ रहें, अपने अपने मज़ाहिब के साथ, अपने अपने अक़ीदों के साथ, अपने अपनी ज़ातों के साथ, अपनी अपनी ज़बानों के साथ तमाम लोग हम रह सकते हैं। आज दुनिया के अंदर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो जिन इलाकों का पता नहीं था आज वो भी सब घंटों में सफ़र किए जा सकते हैं और देखे जा सकते हैं। तो इसलिए मेरी आप हुक्मरानों को ये तंबीह है कि ये लड़ाई वाला मामला जो है इंडिया वालों, इससे बाज आ जाओ, अच्छे रहोगे, अपने मुल्क की आबादी को तबाह बर्बाद होने से बचा लो। हम खुद भी बचना चाहते हैं और उन इंसानों को भी बचाना चाहते हैं कि भाई तुम हमारे हमसाए हो, हमसायों का हम हक फ़ैक अपने मज़हब के मुताबिक समझते हैं। तो इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि हम अमन पसंद है, हमें हम हमसाए हैं तो हम इकट्ठे रहना चाहते हैं। तो आप ये जो आप कर रहे हो कि पानी बंद कर रहे हो, ये इंटरनेशनल लॉ की वाटर ट्रीटी के ख़िलाफ़ है। इंटरनेशनल लॉ है कि जो पानी ऊपर से आएगा वो नीचे वाले मुल्कों का पानी बंद नहीं किया जा सकता। एक सिलसिले में भी हमारी हुकूमत को जाना चाहिए कि वो जाए इंटरनेशनल ट्रीटी में जाकर, अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर वो इंडिया के ख़िलाफ़ बाकायदा, बल्कि उस ट्रीटी के अंदर ये तहरीर है कि ऊपर वाले नीचे वालों का अगर पानी बंद करेंगे तो इसको जंग समझा जाएगा, जंग तस्वर किया जाएगा। इसलिए आप ऐसे जो भोंडी हरकत कर रहे हैं जिससे कि किसी हमसाए के हक़ को आप पाकिस्तान को, हम आपको हमसाया समझते हैं, आप पाकिस्तान को हमसाया नहीं समझते। हमारा पानी बंद कर रहे, आप बंद कर ही नहीं सकते। अगर बंद करोगे तो जंग है, जंग में सब कुछ जायज़ होता है, फिर हम भी आपका बहुत कुछ बंद कर सकते हैं जिसके लिए आपकी ज़िंदगी जीरन हो जाएगी। अच्छा जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारा एक लोकल सतह पे सवाल है आपसे कि मुल्क में बजट और ईद उल जुहा से पहले महंगाई में इजाफा होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, आप इसको किस तरह देखते हैं जी? इस सवाल के जवाब में भी आज मैं वही बात करूंगा कि जो भी हमारे हुक्मरान हैं वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो इंडिया के हुक्मरान है वो इंडिया के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, जो पाकिस्तान के हुक्मरान है वो पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए नॉन इशू जो है, इशू आज हर इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी ये है कि यहाँ से बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, यहाँ से जो गुर्बत है वो ख़त्म होनी चाहिए, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ का जो अभी उसका मियार वो नहीं जो इंटरनेशनल लॉ के तहत या दुनिया के मुअज़्ज़म मुल्कों में है, वो और ज़्यादा कायम करना चाहिए, अपनी कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए। लेकिन उसकी बजाय आप लोगों को ऐसे इशू पर खड़े कर रहे हैं, यानी दोनों पार्टियां हमारे मुल्क की, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये इक़्तिदार में इकट्ठी हैं
सदर पीपल पार्टी का बनाया हुआ है, वज़ीर आज़म मुस्लिम नून का बनाया हुआ है, और पानी पर लड़ाई कर रहे हैं कि हम नहरें नहीं निकालने देंगे, वो कहते हैं हम नहरें निकालेंगे। तो ये ऐसे इशू हैं कि जिसको नॉन इशू कहा जा सकता है। ये नॉन इशू को इशू बनाकर असल इशू को पीछे धकेलने की बात करते हैं लोग। ये तो बहुत अफसोसनाक खबर है कि जब ईद करीब आती है, छोटी हो या ईद उल ज़ुहा हो या ईद उल फितर हो, उस पर महंगाई आवाम पर जो है वो आ टपकती है। तो हुक्मरान क्या इसकी कोई पॉलिसी नहीं बनाते जनाब? पॉलिसी इसकी नहीं बनाई ना। मसलन मैं आज ये अपनी पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि खदारा किसान से तो आप ले रहे हैं 2200 में गंदम, और जब शाम को वो मज़दूर जो दिहाड़ी अपनी लगा कर किलो आटा लेने के लिए जाता है, उसको वो आटा मिलता है 4000 रुपये में, 4000 रुपये मंड के हिसाब से। ये लूट नहीं तो और क्या है कि किसान को भी भूखा मार रहे हैं और आप लूट रहे हैं मज़दूर को भी। ये जब तक हमने ये सिलसिला ना छोड़ा, ये दरमियानी लोग जो हैं जिनका ये जोंके हैं हमारे मुल्क के अंदर, ये खुद तो ना वो कोई फसल लगाते हैं, वो बैठे हैं यहाँ आड़त बना के या माफिया बन के, और ना या हुक्मरान बन के, लेकिन लूटने में वो सबसे ज़्यादा। देखो साहब, आपने देखा है ये क्या हमारी जो जितनी बेकरी की आइटम है इसमें भी कोई कमी आई है? रस में कमी की हो इन्होंने, बाकरखानी में की हो, केक में की हो, फ्रूट केक में की हो, दीगर केक्स बनते हैं उसमें की हो, बिस्किट्स में की हो, क्या इन्होंने कोई कमी की है जी? जुबेर साहब बिल्कुल कमी नहीं की। मैं यही तो रो रहा हूँ कि जब आटा ही दुकान से उसी मजदूर को, उसी गरीब को 4000 में मिल रहा है, तो किसान से आप किस हैसियत में 2200 के गंदम ले रहे हैं? किसी भी आइटम पर, जो बेकरी की आइटम है, जो जिसको फास्ट फूड कहते हैं, कोई भी सस्ती नहीं। बल्कि इवन यहाँ जो मुर्गी ब्रायलर बनाई गई है, वो चूँकि ये बनाते हैं, वो भी कोई सस्ती नहीं होती, वो भी गरीबों की पहुँच से दूर ले जाते हैं आए दिन, और उनको 600 800 तक ले जाते हैं। जो जहाँ पर जो छोटा गोश्त है, वो तो गरीबों ने ईद के अलावा, कुर्बानी वाली ईद के अलावा खाना ही छोड़ दिया है। और अब कुर्बानी वाली ईद भी जो आ रही है, इसमें भी लगता है कि लोगों को छोटा गोश्त नहीं मिलेगा। 2400 रुपये छोटा गोश्त दिया जा रहा है, 1200 रुपये बड़ा गोश्त दिया जा रहा है। कुछ खुदा का खौफ करो। अगर आपने चीज़ गंदम सस्ती लेनी है तो दूसरी आइटम्स भी लोगों को सस्ती मुहैया करो, कुछ ना कुछ सहूलत दोगे तो ये मुल्क तरक्की और खुशहाली की तरफ जाएगा। आप जिस हिसाब से लूटने पर लगे हुए हैं, और लूट कर आप सारी दौलत हमको मकरूज करके, कर्जा IMF से लेकर, तरक्याती बैंक से लेकर, और आप दौलत ले जाते हैं, सरे महल में दौलत ले जाते हैं, इवन फील्ड में, और बाहर ले जाते हैं अपना सरमाया। आपके बच्चे बाहर काम कर रहे हैं और सरमाया कर या लोगों से बाहर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोगली पॉलिसी छोड़ दो, अपने मुल्क की तरक्की का सोचो। मैं कसम खा के कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो आपको 1 रुपया भी नहीं बचेगा, सब दुनिया ने खा जाना है आपका। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ सोचो। अच्छा, ये बताएं कि 26 अप्रैल को हड़ताल अमेरिका, इसराइल, भारत के खिलाफ है, हाफिज नईम रहमान साहब की, तो क्या इस हड़ताल करने से आप इसको किस तरह देखते हैं कि अगर हड़ताल होती है तो इसके असरात क्या होंगे? पूर्व हड़ताल की हद तक मियाँ साहब तो मैं यकजहती के हक़ में हूँ, लेकिन ऐसी हड़ताल जिससे अपने ही मुल्क का नुकसान हो, अपना ही नुकसान हो। मसलन शेखपुरा के अंदर KFC को वहाँ पर एक बंदा कत्ल कर दिया गया, KFC को नुकसान पहुँचाया गया, तो ये हमारी बिल्डिंगें हैं, हमारे मुल्क की दौलत है। इसको नुकसान पहुँचाने से इसराइल को क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए मेरी ये जमात इस्लामी वाले और बाकी दोस्तों से भी, मौलाना साहिबान से भी, उलमा कराम से भी मेरी दस्तबस्ता रिक्वेस्ट है कि अपने मुल्क में अंदर अफरा तफरी ना मज़ीद ना फैलाए। पहले ही बहुत है बेरोज़गारी, पहले ही भूख नंग बहुत है। इसलिए अगर आप चाहते हैं
کہ ہم نے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنی ہے تو اس کے لیے فنڈ جمع کریں، کچھ چیزیں بھیجیں، اس کے لیے اپنی حکومتوں کو مجبور کریں کہ آپ ان کی مدد کریں جا کر۔ کیا دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل صرف اکیلا ملک ہے یہودیوں کا، اکیلی ہے؟ ہم 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، 57 ملکوں میں سے پاکستان کے پاس ہے ایٹم بم بھی ہے، اور نیم ایٹم بم ایران کے پاس بھی ہے، لیکن کوئی ملک بھی حماس کی فلسطینیوں کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف باتوں کی حد تک ہے۔ جو مالی مدد ہے وہ ہم نے بھی، پاکستان کی حکومت نے بھی بھیجی ہے، اس لیے یہاں پر کوئی افراتفری پھیلانے کا مجھے کوئی پاکستانی قوم کو، کوئی فلسطینی قوم کو فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہ بہت سیریس ایشو ہے جو فلسطین اور غزہ کو انہوں نے اس وقت کھنڈر کا منظر بنا دیا گیا ہے، جس کو وہ روح تازہ کر دی گئی ہے کربلا والی۔ تو اس سے جو نظر آ رہا ہے، ہم جنگ عظیم کی جو تیسری جنگ عظیم ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہر ملک کی افراتفری میں لگا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو امریکہ ہے اس نے اپنے ٹیرف بڑھا کر دوسرے ممالک کو تنگ کر دیا ہے۔ تو یہ حالات کشیدہ ہی ہیں، کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہر جو ملک ہے وہ چاہتا ہے کہ تمام ملکوں کا سرمایہ ہم چھین لیں۔ کچھ ملکوں کے جو سرمایہ دار ہیں وہ اپنے ملک کا پیسہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لے جا کے دے دیتے ہیں کہ لو جی ہم لے کے آ چکے ہیں آپ کے پاس پیسے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، ہمارا آخری آپ سے سوال یہ ہے، ایشیائی ترقیاتی بینک کا پاکستان کے لیے $33 کروڑ کے اضافی امداد کا اعلان کیا۔ کیا ملک میں خوشحالی آئے گی؟ عوام خوشحال ہو جائے گی اس سے؟ یہ ہمیں قرضہ ملنے سے اس سے کیا فائدہ ہوگا عوام کو؟ میری عمر ہو گئی ہے 74 سال جو ہے صاحب، اور پاکستان جو ہے نا وہ قرضہ لینے میں میرا خیال ہے ماسٹر ہے۔ ہم نے اتنے قرضے لیے ہیں آج تک کہ یہ 33 کروڑ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، یہاں کا ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ $250 کا مقروض جب پیدا ہی ہوتا ہے۔ اتنا قرضہ لیا ہوا ہے۔ اس کا فائدہ یا خوشحالی ملک میں تب آئے گی کہ جب یہ ملک میں لگے گا، جب یہ سرے مال یا ایون فیلڈ میں چلا گیا اور یہ اپنی کمیشنوں میں لے کر اپنے محلات تو بنا لیں گے، لیکن عوام کو مجھے فائدہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیں جی ناظرین، آج آپ نے ہمارے معروف تجزیہ نگار صفدر حسین سندھو ایڈوکیٹ صاحب ہیں، جن کا آپ نے تجزیہ سنا، اور اگر بھارت نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر ان کے دجالی میڈیا نے پروپوگنڈا بند نہ کیا تو حالات کشیدہ ہو جائیں گے۔ تو پھر نہ آپ کے کیمرے بچیں گے، نہ آپ بچیں گے، یہ سوچ لو، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو باز آ جاؤ ان حرکتوں سے جو آپ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ، بہت اچھے رہو گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے معروف تجزیہ نگار صفدر حسین سندھو صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ناظرین، جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہمارے ٹی وی چینل کو لائک کریں، فالو کریں، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔ تھینک یو۔